शिक्षा का निर्माता मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महान ये जन जन का विश्वविद्यालय जन जन का विश्वविद्यालय देश विदेश सकल फल भूषित नवाचार से सज्जित गुणवत्ता से परिपूरित ज्ञान वाणी ज्ञान दर्शन ज्ञान कोश से संचित ज्ञान कोश से संचित सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय शिक्षा का हिमालय यह जन जन का विश्वविद्यालय 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 Before I invite Professor Ruchika Kuva, I would like to invite Dr. Brigadier Rakesh Gupta, Director, Government Institute of Medical Sciences, because he has a meeting at 10:30 and he has to go. Dr. Rakesh Gupta, please give your special thoughts about this program. Thank you, sir. Am I audible, sir? Yeah. Yeah, good morning, everyone. Dr. Umesh Pandey is a Director, Regional Services Division, IGNOU. Dr. Amit Chaturvedi, Dr. Ruchika Kuba, Dr. Laskar, Dr. Siren Mukherjee, Dr. Anjana, and our very dear faculty, Dr. Rashmi, eminent faculty, and dear participants. So, greetings from GIMS Greater Noida. At the outset, I am grateful to IGNOU and Dr. Umesh Pandey and Amit Chaturvedi sir for giving GIMS an opportunity to participate in this webinar. Regarding this webinar, I think all of us know the tuberculosis and how important is this. Though we are 1/6 of the world population, but the TB burden is 1/4 of the total world population. So it is much more, and it is a really cause of concern for all of us. But the silver lining is that TB is treatable. It is curable disease and completely curable, but you have to follow the guidelines. You have to adhere the treatment, which is not easy. And for that, we need support of each and everyone. The TB treatment is, it's 6 months minimum and extendable up to more in case there are complications or because of some interruption in disease. Adherence to 6 months is not easy. We take antibiotic, we take some medicine for 5 days, that also become regular. So 6 months is a very long time. So adherence, I think, is a big problem which we need to address. Regarding tuberculosis, the government of India guidelines they are so easy. In fact, this is one of the easiest for any disease. Any patient coming to you or coming to anybody in the family, we need to make more awareness. He just reports to the DOT center where he will be taken care of from investigation till complete treatment. And government of India has is giving this treatment completely free. Not only free, they are also giving incentive for the nutrition and other support. So what is required, my request to everyone to make aware people around you. And this is not only a job of doctors or hospitals. It is every citizen of India's responsibility that they should recognize these patients and they should refer them to a specific the particular center. Because every patient in the community, they minimum 10 to 20 patients in a year, they actually, or even more if they are actually open case of tuberculosis. So this is very important for us to know this disease, to make others aware, and to send these patients for the correct treatment. I'm not going to go the detail
इसका statistics, but more than 26 lakhs patients are suffering in India, and more than 5 lakhs are dying because of tuberculosis, which I think is preventable. And the cause of concern is not tuberculosis, but the MDR, multi-drug resistant, and XDR, TB, which, if it spreads, probably is, if not treated in time, become a incurable. So we all have to support. We all have to become partner of to prevent this tuberculosis. Government of India has started this program that by though it's 2030, but we have taken a 5 years lead. So we wanted to finish tuberculosis uh, before uh, 2025. And President of India has actually started this program on 9th of September. And I think IGNU has taken an initiative to make this as a part of their teaching a learning program at such a early stage. So we all can participate in this program wholeheartedly. We can also incorporate various stakeholders besides our own patients, our families, friends, society, various CSR partners who can actually help in establishing, and they can make, or they can help in capacity building. So we can all together, I think we can do it. So we are, my request from Jim, that we should make people's awareness. We should make early referral so that patient can be treated effectively and they are cured, and our country can become tuberculosis free by end of 2025. GIMS is located in the Greater Noida, and we are providing right from screening till whole treatment of even MDR tuberculosis. We also admit patients of MDR tuberculosis. So we are doing a complete treatments, and treatment is completely free. Regarding our Dr. Rashmi, she is a professor in our pulmonary medicine, and she is a die-hard clinician. And I think I have no hesitation saying that during COVID, she has saved maximum patients. And it is her passion. She is totally patient, centric. So Dr. Rashmi actually will make us wise about the tuberculosis causes, treatment, and prevention. We also have Dr. Sirish Jain. He's a district tuberculosis officer. So I requested Dr. Jain to again give us some take-home messages and certain key how we can go about to make this program more effective. So thank you very much, sir, for giving James an opportunity, and for me in particular to participate in this event. And I pray and I hope that this and the TV program will be a big success by we all come together. So thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I invite Professor Ruchika, who is she is the director of School of Health Sciences, IGNU. She is a very eminent professor, and she will address the audience about the health science programs and about this program. Dr. Ruchika Kubai. Thank you very much, Chaturvedi ji, for inviting me on this very important subject, and on this very vast platform in which we have got GIMS as our partner. And I'm very thankful to Dr. Rakesh and also Rashmi ji for coming here and taking out their time for this very important event. So I will just briefly tell that we are from the School of Health Sciences, have two departments. Basically, we have medical faculty over here, and we have nursing faculty, and we are doing various programs through distance education. So we have programs like maternal and child health, we have geriatric medicine, we have a program on hospital and health management, we have one on the medical management of CBRNA disasters. This is all, of course. Another very important program with the ministry which we have is for management of biomedical waste.
So this is from the health sciences point of view. From nursing also, we are having a lot of programs. We have a PhD in nursing, we have post basic BSc nursing, we have programs on adolescent and health counseling, we have on first aid. So there is a long list of programs. And one very important program which the ministry has given, and which is very much linked to the Mukt TB Mukt Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan, is the CCH program. That is the community certificate in community health program, because the wellness centers is one place which is being targeted for awareness and for management and bringing the goal of the TB Mukt Abhiyan. And so this through IGNO, we are training the Ayurvedic practitioners as well as the BSc nursing nurses to be able to man the CCH, man the health and wellness centers. So this is one important contribution. Just a little bit about the Pradhan Mantri TB Mukt Abhiyan, Bharat Abhiyan also, I would just like to say, because although Dr. Rakesh has stressed a lot on the awareness component that has to be done, because the Ministry of Health and Family Welfare has given different roles to different institutions and to all the universities. They have requested for spreading awareness for this program, which is because of which all our regional centers, all our different schools are taking up this responsibility and carrying out these programs. Now, the Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan was started in 2018 by Prime Minister. And this, as Dr. Rakesh has rightly said, that although it comes under the SDG goals, that is the Sustainable Development Goals, which have to be achieved by 2030, but we have preponed our target for TB elimination to 2025. And the reason being that out of all the cases of tuberculosis in the world, 1/4 of the cases are in India. Now, among all the other activities, of course, awareness is the most important, because there's a lot of taboo, there is a lot of misconceptions regarding TB, how it is spread, how we can contact it, how to be controlled. But besides this, the other responsibilities under this Abhiyan are notification of TB centers. So because we are a very big university with our jurisdiction all over the country, we can also spread awareness about this, that any TB case must be notified. That is most important. That is, it must be told to the authorities that yes, this is the name, place of residence of the patient, and he has a tuberculosis patient. Because then there are schemes in which the treatment is taken up by the government, and there are many new drugs which have come, so that the treatment is faster. And as Dr. Rakesh said, that there is a chance of multi drug resistance, so that multi drug resistance rate has also reduced to quite a bit. And success rate of these patients earlier was only around I think 31%, which has now, the success rate of treatment of these patients has risen to 53% in 2019. Then the maximum number of cases were in UP, but the governor of UP took up the responsibility of adopting the TB patients. She started with few children, and successfully, she was able to, with diet input, providing them good diet, she was able to make them TB free. And so till now, 2,000 patients have been adopted by the UP government. Another On 8th September 2022, we have launched the Nikshay Roshan Yojana, in which 500 rupees per month is given to all the TB patients for their diet, so that they can have a good diet. Because one of the most important point in tuberculosis is that you have loss of appetite and you don't have weight gain, and because of which you get all other infections. 65 lakh patients have been given this benefit, and the government has spent 1700 crore rupees till now for this, in this short period of time that it has been launched. And of course, another target, as I have already told you, is the wellness centers, to spread the word. So I think I'm very happy, and to put this on record, that all our regional centers are doing their efforts in spreading awareness, doing these webinars, doing in the villages also. We have had focus group discussions, so that whatever doubts they may be having, clarifying that. So I congratulate all the regional centers, and I also congratulate RC Noida today for this excellent webinar that they have organized.
and I will not keep you between myself and the audience. So I want Dr. Rashmi to now come and speak. I think over to RC Noida. Sir, you can carry forward the webinar now. Thank you, Professor Ruchika ji. And I invite Dr. Rashmi Upadhyay, MD, DNB, Pulmonary Medicine, is working as a professor in Department of Pulmonary Medicine at Greater Noida Institute of Medical Sciences. She has been keenly interested in the critical care medicine and interventional pulmonary, and she has published more than the 20 national and international publications. She has a vast experience in the academic field. Now I request Dr. Rashmi Upadhyay to deliver a lecture, online lecture on tuberculosis, causes, prevention, and its cure. Dr. Rashmi Upadhyay, over to you. Namaskar. Good morning. Thank you, sir, for your introduction. I'd like to pay my regards to Senior Regional Director, Dr. Amit, Director, Regional Services, Dr. Umesh. Thank you, Dr. Professor Ruchika, for your nice introduction to the status of tuberculosis today and the national programs. I welcome all my audience who have joined us online today to discuss about one of the most important topics that the world is dealing with, tuberculosis. So, what is common among all these people? Do we have any idea? Yes, all these people have once in their lifetime suffered with tuberculosis. मुंशी प्रेमचंद की किताबें अगर हमने पढ़ी हैं तो हमें पता होगा कि उनके बहुत सारे किरदारों में ट्यूबरक्लोसिस के जो लक्षण गिनाए जाते हैं उनमें से बहुत सारे लक्षण पाए जाते थे। नेल्सन मंडेला हम जानते हैं इन्हें ट्यूबरक्लोसिस हुआ था। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक, काफी समय कम लोगों को पता होगा कि इनको रीढ़ की हड्डी की ट्यूबरक्लोसिस थी, जो कि बहुत सालों तक, कुछ 3-4 सालों तक इनको इस बात की खबर नहीं थी कि इनको भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। सो हम ये समझ लें कि कोई भी ट्यूबरक्लोसिस से नहीं बचा। लाइफ में किसी न किसी फेज में या तो हम या तो हमारे जानकारी में कोई ना कोई ट्यूबरक्लोसिस से जरूर ग्रसित रहा है। So, Mycobacterium tuberculosis has been a witness to the progress of human civilization, scientific advancements, technological upgradation, and the spirit of progressively expanding the horizons of possibility and knowledge. एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो मैं ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को बहुत ज्यादा इज्जत देती हूँ और इसे अपने क्षेत्र का अश्वत्थामा समझती हूँ, क्योंकि जाने कब से जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है तब से इसका जिक्र कहीं ना कहीं तो जरूर ही रहा है। हम ट्यूबरक्लोसिस के आज की दशा को इन महान व्यक्तियों के जिक्र के बिना आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर कई सालों तक, इवन ईसा पूर्व बहुत सारे हमें अभिलेख मिले हैं जहां पर टीबी का जिक्र है। उस समय लोगों को टीबी का एग्जिस्टेंस सिर्फ एक भयभीत करने वाला सिनेरियो था। लोग इसे थाइसिस, क्षय रोग इन नामों से जानते थे और 18वीं शताब्दी में ही हमें ट्यूबरक्लोसिस का नाम पता चला। ट्रीटिंग फिजिशियंस में ये हम इनका जिक्र करना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि सर लिनेक जिन्होंने हमें स्टेथोस्कोप दिया, ये भी बहुत ही कम आयु में इन्हें भी टीबी हो गई थी और ये भी टीबी के कारण ही इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने बताया कि टीबी सिर्फ फेफड़ों को नहीं अफेक्ट करती है, पेट, हमारे एब्डोमेन को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को, बोन्स को, नर्वस सिस्टम को, लिम्फ नोड्स को, हर अंग को अफेक्ट करती है।
और ये हैं सर रॉबर्ट कॉक, जिन्होंने हमें बताया कि ट्यूबरकुलोसिस कोई अभिशाप नहीं है, सिर्फ क्षय रोग करने के लिए जो कीटाणु रिस्पॉन्सिबल है उसकी खोज इन्होंने की, और इस तरीके से हमें ट्यूबरकुलोसिस का कारक जीवाणु के बारे में पता चला। अब हम आज लेक्चर पे आते हैं कि हमारे लिए ट्यूबरकुलोसिस इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट विषय है हमें डिस्कस करने के लिए, और न सिर्फ हमारा देश, पूरा विश्व ट्यूबरकुलोसिस के निदान के लिए, इसके सही उपचार के लिए पूरी तरह एकजुट हो रखा है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम, हमारे भारत में पर 1 लाख पॉपुलेशन पे 9 लोग MDR ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित है। हमारे यहाँ हम अपने रोजमर्रा के जीवन में हर चौथे इंसान से जो मिलते हैं उसका वो ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड हो सकता है। हमारे पास ये एक बहुत बड़ी समस्या बनके खड़ी हो गई है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा संक्रामक है, बहुत ही ज्यादा कंटेजियस है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो लोग रहते हैं, जो कुपोषण के शिकार हैं, पुअर डेवलप्ड नेशंस में ये बीमारी बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाती है। पूरे विश्व में 38 कंट्रीज, 40 कंट्रीज हैं जहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस का बहुत ही ज्यादा लोग ग्रसित है ट्यूबरकुलोसिस से। हमारा सारा मिशन बहुत पहले से शुरू हो गया था ट्यूबरकुलोसिस को डील करने के लिए। 1962 में पहली बार ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें टीबी के डिटेक्शन और उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे उपाय किए गए, और ये प्रोग्राम अच्छे तरीके से चलता रहा सन 1993 तक, जब लोगों को समझ में आया कि दवाइयों को प्रिस्क्राइब कर देना और मरीज पे छोड़ देना उसकी जिम्मेदारी ये काफी नहीं है। उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका बनाना जरूरी होगा कि दवाइयाँ कैसे खाएं, कब तक खाएं, उसके साथ क्या क्या लें, क्योंकि दवाइयों के ड्यूरेशन बहुत लंबा था, दवाइयाँ लेने का ड्यूरेशन बहुत लंबा था। शुरुआत में तो 1 से 1.5 साल, 2 साल भी लोग दवाइयाँ देते थे। तो उसके बाद से शुरू हुआ डॉट्स का प्रोग्राम, जिसमें कि कुछ 4 दवाइयाँ, उसके साथ इंजेक्शन अगर जरूरी हो तो वो दिया जाता था। एक निर्धारित समय 6 से 7 महीने, अगर जरूरत पड़े तो 1 साल हो दिया जाता था, अगर मरीज ठीक नहीं हो पा रहा हो तो। इन सब के दौरान सन 1990 तक ये परेशानी भी सामने आई कि अब ट्यूबरकुलोसिस नियंत्रण से बाहर जा रहा है, क्योंकि वो वही दौर था जिस समय डायबिटीज हमारे समाज को और ज्यादा अफेक्ट करना शुरू किया। डायबिटीज का प्रेवलेंस हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। साथ ही साथ 1980 के दौरान HIV का भी इंट्रोडक्शन हो गया था हमारी सोसाइटी में। तो फिर इन दोनों की वजह से शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर होने लगा, और इसकी वजह से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का कारक कीटाणु ये इसको हमारे शरीर में पनपने की और शरीर को अफेक्ट करने की और भी ज्यादा सहूलियत मिल गई। ट्यूबरकुलोसिस एज पर से द डिजीज, हर कोई ट्यूबरकुलोसिस से अफेक्टेड नहीं होता। नॉट एवरीवन इज अफेक्टेड विद ट्यूबरकुलोसिस एंड बिकम्स सिक विद ट्यूबरकुलोसिस। हमारे शरीर में ट्यूबरकुलोसिस का कीटाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंटर तो जरूर कर जाता है, लेकिन वो लंबे समय तक वहां पे स्टे कर सकता है, शिथिल रह सकता है, अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो। इसलिए ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन और ट्यूबरकुलोसिस का डिजीज 2 डिफरेंट सिनेरियोज हैं। जो हम नॉर्मल जांचें करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट, मॉन्टूक्स टेस्ट, या फिर आजकल एक महंगी जांच भी आती है इग्रा, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ब्लड टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। तो ये 2 जांचें ये सिर्फ हमारे शरीर में इन्फेक्शन बताती है। इस पॉइंट पे मैं ये भी बताना चाहूंगी आप सभी लोगों को कि हमारे देश में इन टेस्ट का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन तो बहुत कॉमन है। जैसा कि मैंने बताया, हर चौथा इंसान ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड है, लेकिन अगर उसकी शरीर की
अवरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो वो इन्फेक्शन डिजीज में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अगर वो खान पान में ठीक है, ऐसी कोई दवाइयां नहीं ले रहा जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम वीक होता है, जैसे कि स्टेरॉइड्स, अगर वो डायबिटिक नहीं है या किसी और कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित नहीं है, तो फिर उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और टीबी इन्फेक्शन से टीबी डिजीज तक का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा ऐसे लोगों में, और ये पूरी तरह ठीक रहेंगे। जैसे लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, इसको बोलते, अगर सिर्फ इन्फेक्शन रहा और डिजीज नहीं, डिजीज में परिवर्तित नहीं हुआ, तो उसको हम लेटेंट टीबी इन्फेक्शन बोलते हैं। ऐसे लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं होते, वो कभी बीमार नहीं पड़ते, उनके शरीर में ये क्षय रोग से क्षय नहीं होता, शरीर कमजोर नहीं पड़ता। ऐसे लोग टीबी की बीमारी स्प्रेड भी नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ ट्यूबरकुलोसिस पर से टीबी डिजीज, टीबी बैक्टीरिया बहुत बिकम्स एक्टिव अगर हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता वीक हो। जैसा मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं जहाँ पे हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है। ऐसे लोगों में हम सामान्यतः देखते हैं कि कफ होता है, जो दो कफ, बलगम, खांसी और बलगम, ये 2 या 2 से ज्यादा हफ्ते तक लगातार बना रहता है। सांस में दिक्कत होती है, चेस्ट पेन होता है, वीकनेस होती है, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, हल्का हल्का बुखार बना रहता है, जो लोग हरारत समझकर बहुत दिन तक उसको नजरअंदाज करते रहते हैं। शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है, जर्जर हो जाता है। रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टीबी डिजीज, इन्फेक्शन से डिजीज का सफर वही लोग तय करते हैं जहाँ पे इम्यून स्टेटस बहुत वीक होता है, एक्सट्रीम्स ऑफ एज, जैसे बच्चों में बहुत ज्यादा ये परेशानी बढ़ जाती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कुपोषण के शिकार हो, और सबसे इम्पोर्टेंट डायबिटीज और HIV वाली कंडीशंस। आज every day over 4,100 people, 4,100 people lose their lives to TB, and close to 28,000 people fall ill with this preventable and curable disease. तो हम समझ सकते हैं कि ये परेशानी कितनी ज्यादा है और हमें इसके लिए कितने व्यापक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हम अपनी सोसाइटी को बेटर बना सके और अपने हेल्थ कॉस्ट, हेल्थ एक्सपेंडिचर को कम कर सके। इसके लिए सरकार ने कई व्यापक कदम उठाए हैं जिनके बारे में मैं आज बताऊंगी। आज के लिए हमारा सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? HIV भी हमारे समाज में बहुत बढ़ रहा है। डायबिटीज, ऑलमोस्ट वी आर द सेकंड लीडिंग कंट्री इन मैटर ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ डायबिटीज, चाइना के बाद। हमारी इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी बहुत बढ़ गई है, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो गई है, हमें रहने के और ट्रीटमेंट लेने के बेहतर उपाय मौजूद हैं, लेकिन इसी तरीके से डायबिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस का संक्रमण और ट्यूबरकुलोसिस डिजीज होने के चांसेस 5-fold बढ़ जाते हैं, 5 गुना अधिक हो जाते हैं। HIV संक्रमित मरीजों में टीबी का रिस्क 20-fold बढ़ जाता है। ऐसी सिचुएशन में आज हम जी रहे हैं, और ये लोग फिर अपने भी तो संक्रमित होते हैं और अपने आसपास 8 से 10 लोगों को संक्रमित करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए ये सिचुएशन कितनी ज्यादा गंभीर है। आज ग्लोबल नेशनल मैग्नीट्यूड ऑफ टीबी और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का अगर हम आंकड़ा देखें तो हमें समझ में आएगा कि टीबी का इंसिडेंस का 26% ऑफ द ग्लोबल बर्डन हमारे देश का है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का 27% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारे देश में है, और मोर्टालिटी भी वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो 32% मोर्टालिटी बिकॉज ऑफ टीबी एंड HIV हमारे देश में है। तो अब हमारी सरकार ने काफी व्यापक कदम उठाए हैं इस चीज को ट्रीट करने के लिए। अब बात सिर्फ टीबी की नहीं रह गई है, टीबी को ट्रीट करने की नहीं रह गई है। आज की डेट का मेजर कंसर्न मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है। जो दवाइयां हम इस्तेमाल करते रहे हैं अभी तक, वो 4 दवाइयां, उनसे रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। वो दवाइयां आमतौर पे काम नहीं कर रही हैं। अब नई दवाइयां
इस्तेमाल की जा रही हैं टीबी के इलाज के लिए। तो सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसमें नेशनल स्ट्रैटेजी प्लान 2017-2025 के अंतर्गत ये हमारे स्ट्रैटेजी है जिसपे हम टीबी के उन्मूलन के लिए काम कर सकते हैं। हमें प्रिवेंट करना है, डिटेक्ट करना है, ट्रीट करना है, एंड वी हैव टू बिल्ड रिसोर्सेस। हमें प्रिवेंट क्या करना है? ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने की कोशिश करनी है। पहले से भी ये बात हमेशा बताई जाती रही है कि खांसी करते समय अपने मुंह पे हाथ रख लें, कुछ कपड़ा रख लें, ताकि हम कीटाणुओं को ऐसे हवा में ना बिखरने दें। लेकिन थैंक्स टू कोरोना डिजीज ने हमें इस प्रैक्टिस के लिए काफी अफेक्ट किया है। अब लोग काफी अवेयर हो गए हैं कि अब खांसी करते समय एटलीस्ट अपने मुंह पे कपड़ा रख ले ताकि हमारी बीमारी आगे ना फैले। डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, पहले दूर दराज के इलाकों में, पुअर पॉपुलेशन में ये ट्यूबरक्लोसिस का डिटेक्शन मुश्किल था क्योंकि वहां तक डॉक्टर्स भी नहीं पहुंच पाते थे। लोग भी इतने अवेयर नहीं होते हैं कि आकर के अपनी जांच करा लें। अगर बहुत लंबी खांसी हो रही है, हरारत लग रही है, मुंह से खून आ रहा है, तो लोग बस डर जाते हैं, डर के बस बैठ जाते थे, वो पहुंचते भी नहीं थे हॉस्पिटल्स में या इवन अपने आसपास के डॉक्टर्स के पास। तो सरकार ने पूरी कोशिश की है कि दूर दराज के इलाकों में भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे 1000 की पॉपुलेशन पे एक डॉट सेंटर स्थापित करने की, वहां पे बलगम की जांच कराने की, माइक्रोस्कोपी कराने की, और अब तो कुछ नई आधुनिक तकनीकें भी आ गई हैं जिससे कि इलाज संभव है। तो मैक्सिमम डिटेक्शन, और जितनी जल्दी हम डिटेक्ट कर पाएंगे ट्यूबरक्लोसिस, उसी हिसाब से फिर हम नेशनल प्रोग्राम्स के अंतर्गत मरीजों का इलाज भी शुरू कर सकते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को बहुत ही तीव्र और कारगर करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं जिसके बारे में अभी मैं बताऊंगी। और इस बारे में अभी हमारे सीनियर्स डॉक्टर रुचिका ने भी बताया है कि WHO ने टारगेट रखा है 2030 में ट्यूबरक्लोसिस को इरेडिकेट कर देने का। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि परेशानी बहुत बड़ी है, इससे रिलेटेड सामाजिक कंडीशंस बहुत ही ज्यादा बुरी हैं, और चूंकि ये बीमारी 1% को अगर होती है तो अपने साथ 8-10 लोगों को और परेशान करती है। एक मरीज अगर घर में हो तो पूरा घर परेशान हो जाता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमारे देश में सन 2025 तक इस बीमारी का एलिमिनेशन करने का की ठानी है हमारी सरकार ने, और उसके लिए बहुत सारे व्यापक कदम उठा रहे हैं। हमें बिल्ड करने हैं रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड टीबी रिसर्च, ताकि हम बेहतर इलाज ढूंढ पाए ताकि हम इस बीमारी से निजात पा सकें। ये पुरानी दवाइयां थी जो यूज की जाती थी, इनके बारे में सबको पता है। ये 4 दवाइयां, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अब ट्यूबरक्लोसिस दो ट्रीटेबल लेकिन इन दवाइयों के लिए इनइफेक्टिव हो रही है। तो फिर नई दवाइयां डिस्कवर की गई, डेवलप की गई, और उनका इस्तेमाल किया जाता है इन दवाइयों के साथ ही, ताकि मरीजों को पूरा पक्का कारगर इलाज मिल सके और वो ठीक हो सके। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस का बनाना इसलिए जरूरी था ताकि मरीजों को हम कैटेगराइज कर सकें और उस हिसाब से उनको टेलर मेड इलाज दे सके। सारे लोगों को एक प्रकार की टीबी नहीं होती, और सारे लोग एक ही प्रकार की दवाइयों से ठीक नहीं होते। रेगुलर रिसर्च और फील्ड वर्क से ये बात साबित हो चुकी है। तो इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया गया है टीबी के विभिन्न प्रकारों को, और डिपेंडिंग अपॉन उनके मरीजों के सेंसिटिविटी पैटर्न, जो उनकी बलगम की जांच होती है उसके सेंसिटिविटी पैटर्न को देखते हुए फिर उनका इलाज उन्हीं दवाइयों से करते हैं जो असरदार साबित होंगी, ताकि बहुत लंबे समय तक परेशान न होना पड़े मरीजों को।
एक मोनोड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, सिंगल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस भी है, पॉलीड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस भी है। अगर सिर्फ एक दवाई से मरीज रेजिस्टेंट है तो उनको मोनो रेजिस्टेंट बोलते हैं। एक या एक से ज्यादा दवाइयों से रेजिस्टेंट है मरीज तो उसको पॉली रेजिस्टेंट बोलते हैं। और एमडीआर तब बोलते हैं जब जो दो मेन दवाइयां थी, आइसोनियाजाइड और रिफैम्पिसिन, अगर इनसे रेजिस्टेंट होता है तो हम इसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों दवाइयां सबसे ज्यादा कारगर दवाइयां रही हैं जब से कीमोथेरेपी शुरू हुई है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। हम ये दवाइयां सन 19 पहली बार जब टीबी के लिए दवाई जो निजात की गई थी वो इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन था जो लंबे समय तक दिया जाता था। उसके बाद फिर ओरल मेडिसिन का डिस्कवर हो चुकी थी और 1960 से ये दवाइयां इजिली अवेलेबल थी और मरीजों को दी जाती थी और मरीज इससे ठीक होते रहे थे। ये ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के कुछ माइलस्टोन्स हैं जो सरकार ने बहुत पहले समझ लिया था कि ये चूंकि एक कम्युनिकेबल डिजीज है, हमारे समाज को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करती है, तो हमें नेशनल प्रोग्राम्स के तहत काम करना चाहिए। तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम शुरू हुआ, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम शुरू हुआ और डॉट्स के अंतर्गत नेशन वाइड कवरेज भी दे दिया गया। इस लोगों से हम सभी बहुत परिचित हैं, कई बार दूरदर्शन पे और जब भी जिक्र होता है ट्यूबरक्लोसिस का तो टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हमारी सरकार ने ये सारी सुविधाएं दी। कम्युनिटी सपोर्ट टू टीबी पेशेंट्स, निक्षय मित्र, ये हमारे फील्ड वर्कर्स होते हैं जो अगर कोई मरीज बहुत ही ज्यादा कमजोर है, बहुत वीक है, अस्पताल तक नहीं पहुंच सकता, डायग्नोसिस सेंटर तक नहीं पहुंच सकता, दवाइयां लेने नहीं आ सकता, तो ये घर घर जाकर के लोगों तक दवाइयां पहुंचाते हैं, ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयां। 2012 में एक निक्षय पोर्टल क्रिएट कर दिया गया था ताकि हर मरीज कोई भी मरीज ट्यूबरक्लोसिस का अगर पाया जाता है तो उसको नोटिफाई कर दिया जाए और एक नेशनल पोर्टल पर उसका नाम दर्ज कर दिया जाए ताकि हमारे देश में ट्यूबरक्लोसिस कितना ज्यादा व्यापक हो चुका है इसका पता चल सके। दूसरी चीज, दवाइयों को उन तक पहुंचाने की सारी व्यवस्था की जा सके। तीसरी चीज, समय के साथ जब पता चला कि सही पोषण से, अच्छे आहार से मरीज ठीक हो सकते हैं तो उनके लिए एक निक्षय पोषण योजना शुरू की गई, जिससे एक 500 रुपए का पर मंथ एक हर नोटिफाइड पेशेंट को देने की सुविधा की गई ताकि वो मरीज जो सिर्फ दवाइयां खा रहे हैं और उसके साथ सही पोषण नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे मरीजों को के खान पान की बेहतर व्यवस्था करके उनकी बीमारी को और बेहतर तरीके से डील किया जा सके। तो ये निक्षय पोषण योजना भी सरकार ने शुरू की, क्योंकि इन दवाइयों जो टीबी की दवाइयां होती हैं उसका शरीर पे बहुत कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी आते हैं, जिसकी वजह से मरीज अक्सर दवाइयां खाना छोड़ देते हैं कि ये दवाइयां खा रहे हैं, खाली पेट खानी है, फिर उल्टियां होने लगती हैं, कभी कभी दवाई नहीं पचती, खाना नहीं खा पाते, तो शरीर और भी ज्यादा दुर्बल होता जाता है। ऐसे सिचुएशंस के लिए ये जो हमारे निक्षय मित्र हैं ये उनको समझाते हैं कि इन सब परेशानियों से डील किया जा सकता है, इसके लिए दवाइयां उपलब्ध है, लेकिन वो किसी भी कीमत पे दवाइयां खाना ना छोड़ें, क्योंकि दवाइयां नहीं खाएंगे तो बीमारी उनके साथ तो बुरा करेगी ही, उनके आसपास भी जो लोग हैं उन पे भी बहुत बुरा असर आएगा। तो इस प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया और इसीलिए आज हम ये डिस्कस भी कर रहे हैं कि हम और क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं, कैसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके लिए दवाइयां शुरू कर सकते हैं। प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज में अभी तक ये पाइपलाइन में ही है। अभी हम ये फ्लोर पे तो नहीं काम कर पाए, अभी हम सोसाइटी में अभी ये प्रिवेंटिव वाली स्ट्रैटेजीज नहीं ला पाए हैं, लेकिन हम बहुत शीघ्र ये भी शुरू कर पाएंगे।
प्रिवेंशन के कुछ तो हमारे हैबिचुअल तरीके होते हैं कि हमने खांसी की तो हमने मुंह पे कपड़ा रख लिया। स्पूटम बलगम अगर हम चल फिर रहे हैं और हम कई बार ये मना किया जाता है, ये सिविक सेंस है कि रास्ते में बलगम ना थूकें, तो ये सब चीजें लोगों को समझाई जा रही हैं, बताई जा रही कि इससे कितनी ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं और कितने ही लोग प्रभावित हो सकते हैं। MDR TB इन दोज, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम मुद्दा है कि MDR TB in those with TB infection is more than twice common in those less than 15 years of age. तो हमारे देश की जनता में ये जो कम उम्र के बच्चे हैं, 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे अगर MDR TB के मरीजों के संपर्क में आते हैं तो उनमें MDR TB होने की संभावना 2 गुना ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। ये बहुत ही विचार करने वाला डेटा है, और इसलिए हम सभी को बहुत ज्यादा सजग रहना पड़ेगा कि हम अपनी पूरी कोशिश करें कि ट्यूबरकुलोसिस और ये MDR फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड ना होने पाए किसी भी तरीके से। WHO recommendations on TB preventive treatment. TB preventive treatment ये नई चीज है as far as the treatment of tuberculosis is concerned. इसमें अगर कोई कांटेक्ट होता है, मतलब अगर कोई TB के मरीज के संपर्क में आता है, MDR TB मरीज के संपर्क में आता है, तो अगर उसे TB नहीं भी हुई है, TB होने की संभावना बनी हुई है, तो ऐसे ग्रुप को ये कुछ दवाइयां हैं जो कि TB के इलाज के लिए यूज की जाती हैं। उन दवाइयों का एक लंबे समय तक सेवन करने से MDR ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये हमारे अब नेशनल प्रोटोकॉल्स में आ गया है और शीघ्र ही ये हम प्रैक्टिस भी करना शुरू कर देंगे। अगेन लोगों को थोड़ी हेजिटेशन इसलिए भी होती है क्योंकि ये TB की दवाइयां शरीर पे कुछ ना कुछ असर डालती हैं। लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर कभी लिवर पे बुरा असर पड़ता है, जॉन्डिस हो जाती है, किडनी पे भी असर पड़ता है, कई बार आंखों पे असर पड़ता है, कोई भी ऑर्गन अफेक्टेड हो सकता है, जिसके बारे में मरीजों को पहले से ही बता दिया जाता है कि होने की संभावना है। ऐसी कोई भी परेशानी आए, उल्टी हो या खुजली होने लगे या पीलिया होने लगे या घबराहट होने लगे, आंखों में परेशानी होने लगे, तो ऐसे मरीजों को शीघ्र आकर के अस्पताल में एक बार सलाह ले लेनी चाहिए। ऐसे सिचुएशन में दवाइयां बदली जा सकती हैं या इन परेशानियों का उपाय बताया जा सकता है। तो ये सारे कदम उठाए जा सकते हैं ताकि मरीज अपनी दवाइयां ना छोड़े किसी भी कीमत पे। डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, बेसिकली ये सारी तो अब लेटेस्ट टेक्निक्स हो गई हैं। इन सब रिसर्च द्वारा पाया गया है कि TB के निदान में, TB की डायग्नोसिस में ही बहुत सारा समय लग जाता था और इस वजह से TB का इलाज करते करते मरीज की दशा और ज्यादा बिगड़ जाती थी और फिर हम कुछ कर नहीं पाते थे। तो अब ये नई टेक्निक्स आ गई हैं ताकि इसमें न सिर्फ TB है कि नहीं है इस बात का पता चलता है, ये भी पता चलता है कि TB की बीमारी पर के लिए जो दवाइयां इस्तेमाल की जा रही हैं वो कारगर सिद्ध होंगी या नहीं। तो विद इन फ्यू आवर्स, विद इन डेज, 1 और 2 डेज हम TB के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों का भी स्टेटस जान सकते हैं कि वो दवाइयां असर करेंगी कि नहीं करेंगी। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही कारगर कदम सिद्ध हुआ है TB की अर्ली डायग्नोसिस कर लेने का। और अर्ली डायग्नोसिस मतलब अर्ली नोटिफिकेशन एंड वी स्टार्ट अर्ली ट्रीटमेंट। तो ये बहुत ही कारगर कदम रहा ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के लिए। ड्रग रेजिस्टेंट टेस्टिंग की बात जैसे मैं बताई थी, जीनोटाइपिक टेस्टिंग हो जाती है, दवाई असर करेगी कि नहीं करेगी ये पता चल सकता है। और कुछ वल्नरेबल पॉपुलेशन है जिनमें वो लंबे प्रोसेस को बहुत छोटा कर देते हैं कि हमने पहले ही उनकी जेनेटिक टेस्टिंग कर दी, दवाइयां असर करेंगी कि नहीं करेंगी उन पर, ये हमने बलगम की जांच के साथ ही डायग्नोज कर दिया।
जैसे वो बच्चे, जैसा मैंने बताया कि उनमें MDR टीबी होने की संभावना 2 गुना ज्यादा हो जाती है, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो बच्चों में एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस माने पेट की टीबी, रीढ़ की हड्डियों की टीबी, दिमाग की टीबी, ऐसे लोगों में, और कॉन्टैक्ट्स ऑफ ड्रग रेसिस्टेंट टीबी पेशेंट्स, घर वाले जिनके घर में टीबी का एक भी मरीज है उनमें, और बूढ़े लोग, वो लोग जो कैंसर से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों में हम 2-3 चरण का प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करते। इनमें हमने बलगम जब लिया तो सीधे उसको जांच के लिए भेज देते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस पैटर्न जानने के लिए, ताकि हम उनका अति शीघ्र इलाज शुरू कर सकें। ये सारी जांचें, ये सारे उपाय, ये सारे लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज, ये सब अवेलेबल है। सरकार ने मुफ्त में मुहैया करा रखा है। इसमें कोई व्यय नहीं होता, कोई कुछ भी खर्चा नहीं आता। और ये ग्रुप क्योंकि सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप है, तो इनके लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। हम बहुत जल्दी निदान कर लेते हैं, बहुत जल्दी डायग्नोज कर लेते हैं, और इसलिए इनका प्रोग्रामेटिक मैनेजमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस या डॉट्स, दोनों के रेजिस्टेंस पैटर्न को देखते हुए इनका इलाज शुरू हो जाता है। हम टीबी के इलाज में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वो ये है कि मरीज कॉम्प्लायंट हो। मरीज को ये लंबी अवधि तक दवाई लेने के लिए हम निरंतर उसको प्रोत्साहित करते रहते हैं। नहीं तो कई बार ये लंबी अवधि की वजह से मरीज दवाइयां खाना छोड़ देते हैं। तो कॉम्प्लायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस सिलसिले में जो हमारे निक्षय मित्र हैं वो बहुत काम करते हैं। सरकारी अस्पताल सारे अवेलेबल हैं, वहां भी हम मरीजों को हमेशा प्रमोट करते रहते हैं कि वो दवाइयां लेना कभी ना छोड़ें। जो भी परेशानियां होंगी उनसे हम डील कर लेंगे, लेकिन वो अपनी दवाइयां का कोर्स पूरा कर लें। काउंसलिंग एंड एश्योरेंस, एक्सप्लेन द पेशेंट्स रिगार्डिंग ऑल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। मरीज घबरा जाता है, वो डर जाता है कि ये दवाई खाने से दिक्कत हो रही है। तो इन सब सिचुएशंस के लिए हम शुरू से सचेत रहते हैं, और इन सब सिचुएशंस से डील करने के लिए हम रेगुलर मरीज से इंटरैक्ट करते रहते हैं। गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है हमारा? रेंडर द पेशेंट नॉन इन्फेक्शियस, ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिक्रीज द पूल ऑफ इन्फेक्शन। तो सारी की सारी नीतियां इन्हीं 3 बिंदुओं पे केंद्रित हैं कि हमें पूल ऑफ इन्फेक्शन कम से कम रखना है, हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कम से कम करना है, और इस हिसाब से हम दवाइयां अगर सही तरीके से देंगे तो पेशेंट नॉन इन्फेक्शियस हो जाएगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बताना चाहूंगी, नॉर्मल टीबी हो जो साधारण सामान्य 4 गोलियों से ट्रीट होती है, उनमें 2-3 हफ्तों तक दवाइयां लगातार सही से खाएं तो इन्फेक्शियस नहीं रहता, चेन ऑफ पेशेंट नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है। वो अब ये टीबी का कीटाणु आगे फैला नहीं सकता। और जो MDR ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स है वो भी महीने 1.5 महीने में अपना दवाइयों के असर से अब ये इन्फेक्शन फैला नहीं सकते। ऐसा नहीं होता कि 6 महीने तक अगर कोई पेशेंट टीबी का ट्रीटमेंट ले रहा है तो 6 महीने तक उसको आइसोलेट करना है, या फिर उससे किसी को मिलना जुलना नहीं है, या फिर वो संक्रमण फैला सकता है। ये बात गलत है। इससे उनका मनोबल टूटता है, वो खुद ही नहीं आके बताना चाहते। जैसा कि हमेशा से चला है, साल दर साल लोग परेशान रहते थे कि अगर टीबी के बारे में बता दिया तो लोग उनसे मिलना जुलना छोड़ देंगे, उनसे किनारा कर लेंगे। तो ये लोगों को अवेयर करना भी बहुत जरूरी है कि 2-3 हफ्तों में नॉर्मल टीबी में और 6 हफ्ते तक में MDR ट्यूबरकुलोसिस में ये संक्रमण फैला पाने की क्षमता फिर खत्म हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। तो ऐसे लोगों को टीबी के मरीजों को भी घबराने की जरूरत नहीं है, और टीबी के मरीजों के आसपास के लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। उनको सहायता की जरूरत है, उनको सहयोग की जरूरत है, उनका मनोबल ऊंचा करने की जरूरत है, ताकि वो ठीक हो जाए, ताकि हमारा समाज ठीक रहे। डिक्रीज टीबी डेथ एंड रिलेटेड कमोडिटी बाय इंश्योरिंग रिलैप्स फ्री क्योर। अगर पूरा ट्रीटमेंट होगा तो कोमोबिडिटी भी
नहीं रहेगी, टीबी डेथ नहीं रहेगी और रिलैप्स नहीं होगा। रिलैप्स मतलब दोबारा से अगर आधा ट्रीटमेंट लिया है 6 महीने के बजाय 2-3 महीनों में ही इलाज लिया है, तो टीबी के वापस हो पाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फिर रेसिस्टेंट टीबी होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस चीज पर हमें हमारे समाज को भी बहुत अवेयर होना होगा। ये कुछ नई दवाइयां हैं, ये सब डॉट सेंटर पे इजीली अवेलेबल होती हैं। इन सब ये सब मुफ्त में अवेलेबल हैं हर सेंटर्स पे, ताकि एमडीआर टीबी वाले जो मरीज हैं वो भी ट्रीट हो सके। उन 4 दवाइयों रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पैराजेनामाइड और इथैम्बुटोल के अलावा इन दवाइयों की भी उपलब्धता में कोई परेशानी नहीं है। The whole focus of today is patient-centric care. हम मरीज के मुताबिक, मरीज के कंफर्ट के मुताबिक, मरीज की सुविधा के मुताबिक उनका इलाज करें, ताकि हम मैक्सिमम पॉपुलेशन को कवर कर सके, मैक्सिमम लोगों को ट्रीट कर सके। वर्ल्ड टीबी डे 2022 का जो थीम था दैट वाज इन्वेस्ट टू एंड टीबी। अभी तक हम 2017-2018 तक बात कर रहे थे स्टॉप टीबी, लेकिन अब है इन्वेस्ट टू एंड टीबी, और यही हमारा गोल है सन 2025 तक। सेव लाइफ। This conveys the urgent need to invest resources to ramp up the fight against TB and achieve the commitments to end TB made by global leaders. अब ये विश्वव्यापी अभियान है और हमारी सरकार ने भी बहुत कदम उठाए हैं इस बीमारी को से डील करने के लिए। यहाँ प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अब फ्री जांच, फ्री इलाज, इवन मरीजों के लिए पोषण योजना, उनके लिए आर्थिक सहायता, ये सब कुछ अवेलेबल है, ताकि हम मरीजों को मरीज हम तक पहुंच पाए, और अगर मरीज हमारे तक ना पहुंच पाए तो हम मरीजों तक पहुंच पाए, ताकि उनको पूरा पक्का इलाज मिल पाए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अब ये हर कोई जानता है कि हमें टीबी को कैसे हराना है, और 2025 जो हमारा टारगेट है उसे हम कैसे पूरा करेंगे। अंत में मैं अटल बिहारी वाजपेयी की ये कविता से अंत करना चाहूंगी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। धन्यवाद। Thank you, Dr. Rashmi. You gave a wonderful lecture on the tuberculosis. What are the causes, how to prevent, and what is the cure of the tuberculosis. Really, it is a great enemy for the country, like polio. Really, we have to eradicate by 2025. Government of India has taken a great step for प्रधानमंत्री मुक्त टीबी मुक्त प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान ये जो चलाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट्स a great move for the eradication of the tuberculosis from the country. Now I invite Dr. M.A. Laskar, Deputy Director, to give the remarks. Thank you, sir. Namaskar. Namaskar to all of you. Madam Professor, Madam Dr. Rashmi Madam has given a very detailed information. She has highlighted very important facts, various issues related to the TBs. How it spreads, how it communicates. It is a communicable disease, and all of us has to be aware about its consequences, how to take precautions. Basically, you have to keep ourselves aware about the program, about the TB-related disease. This is most important, since it is a communicable diseases, and the figure is very high, as highlighted by Professor Kuba and Professor Gupta. The number is quite high,
And in India, it is, of course, higher compared to other countries. And in fact, I have also learned many new things from Professor Rashmi. And in fact, this will be useful. And I will be also be passing on this information, whatever is required. And everybody has to share this information and how it is spread. And you have to take necessary precautions. The way she mentioned that COVID has taught us some lessons. So this is important. This is important because you have to take care of the preventive measure also. You have to see how people are suffering and how it can be prevented. And she has highlighted the important informations and about the medical aspect also, how it is treated. And there may be so many other people who are affected with TB, but it is not being reported. Number may be still higher than the reported numbers. So, and in fact, this TB patient, all the TB patient person has to be reported, and this is always good for the country, so that it can be eradicated accordingly. And in fact, Madam said you will be successful, and in fact, the government of India has taken big steps, and all of us should try our best. We should take our preventive measures and spread awareness. And in fact, IGNU has been given the charge also to spread awareness by the government, and we will try our best as a stakeholder for this program. And thanks to all the experts for highlighting the important issues. I believe many of the participants will be benefited through this program. And thanks to all the experts again and all the participants for attending the seminar. Thanks to over to you, sir. Thank you, Dr. Laskar. We are fortunate that Dr. Srish Jain, District TV Officer, Tuberculosis Officer, has joined our program, and I want some message from Dr. Srish Jain. Please, sir. Welcome, sir. Good morning, everyone. Am I audible? Yeah. Good morning, everyone. First of all, my compliments and congratulations to all the organizers. And it was really a treat to listen to Dr. Rashmi and the director James. They spoke very well. And as a program officer of the district Gautam Buddha Nagar and a part of the state and the central TB division, I will just like to share one thing, that we are in the mode of elimination, not the eradication. Okay. Acha. And our goal of 2025 is very much achievable by virtue of only 4 or 5 things. That is quality early diagnosis, which we are doing free of cost, quality initiation of early treatment, recognition of MDR treatment, MDR disease through UDST, which we are doing at free of cost, and absolutely counseling the patients for adherence, and if necessary to admit the patients for free of cost, and which we in our district we are doing very much in gyms at this point of time. We are admitting the patient, and once again a great congratulations to the people of gyms who are under the leadership of Dr. Rashmi. They are doing a great job for our MDR patients. And now very soon we are going to have a CBNet machine also there for further diagnosis. So that is the thing. And we are doing, and we will certainly do with together as a team. We will definitely eliminate the TB. Jai Hind, Jai Bharat. Thanks a lot. Thanks so much to inviting me. I'd like to interfere here. Sorry, I will take just a small amount of time. Thank you, Srish sir has been a very supportive, very encouraging at every point of time. We get the CB19 at our point and at our place and start state-of-art type of a center at gyms. It has been possible because of DTO sir, Dr. Srish. He's been very encouraging and very supportive at every point of time. Thank you so much, sir. I'm really humbled. Thank you, Dr. Shrees, Dr. रीता देवी जी, बहुत बधाई आपको, आपने ज्वाइन किया हमारे प्रोग्राम को, और श्रीज जैन जी आपको भी बहुत शुभकामनाएं, बधाई from the IGNU Regional Center Noida. Now I request Dr. Shiran Mukherjee
Additional Director, IGNOU Regional Center, Noida, Dr. Shiran. Good morning. Am I audible? Yes, yes. अनम्यूट करिए मैडम. Good morning and greetings to Brigadier Rakesh Gupta, Director JIMS, Dr. Rashmi Upadhyay, Department of Pulmonary Medicine, JIMS, Dr. Shirish Jain, District Tuberculosis Officer, District Gautam Budh Nagar, Dr. Umesh Chandra Pandey, Director Regional Services Division, Dr. Ruchika Kuba, Director School of Health Sciences, Dr. Rita Devi, Professor School of Health Sciences, Dr. Amit Chaturvedi, Regional Director, IGNOU RC Noida, Dr. Lashkar, Deputy Director, IGNOU RC Noida, Dr. Anjana, Assistant Regional Director, IGNOU RC Noida, my colleagues and other officials at Regional Center Noida, and other participants of this important webinar. It gives me a great pleasure to be amidst all of you today in this webinar on tuberculosis control and its elimination, as Dr. Sirish Jain said, not eradication but elimination of this very deadly disease from the society. It has been my pleasure to be amidst all of you. I would like to thank Dr. Rashmi Upadhyay for this very engaging, insightful address on the very important aspects and nuances of tuberculosis as a disease, the measures that are being taken by the society, by the government, by the Ministry of Health and Family Welfare towards its elimination, the overall statistics, the data that she has presented very meticulously in her address to all of us today. I thank Dr. Rakesh Gupta, the Director JIMS, for being with us for his inaugural address. I would like to thank Dr. Ruchika Kuba, the Director SOHS, who has been instrumental in launching and also coordinating various health science programs, and also for today's opening remarks. I thank Dr. Rita Devi for being with us here in this important program. I thank Dr. Sirish Jain, the District Tuberculosis Officer, for his remarks on this important event today. It gives me great pleasure to hear about the various activities, various steps that the government is taking through the District Tuberculosis Elimination Project. And I really hope that together the Health Science Department of IGNOU, the Ministry of Health and Family Welfare, the representatives of JIM, and all of us as a part of society will be able to achieve this very important mission by 2025 as communicated by Dr. Sirish Jain. Thank you so much, all of you, and we look forward to a very fruitful academic association and collaboration with JIMS in this regard, and also with regard to the study center that we are hopefully looking forward to having at JIMS. Thank you so much. Thank you, Dr. Shiran. Now I request Dr. Anjana Mukherjee, Anjana Ji, Assistant Regional Director, for the vote of thanks. Very good morning to everyone. It's my privilege to present formal vote of thanks in this program. First of all, I would like to place thanks towards our Director, Regional Services Division, Sir Dr. Umesh Chandra Pandey, for his able leadership under which the regional centers are functioning and we are organizing this program. We are thankful to you, sir.
I also I sincerely place gratitude towards Dr. Brigadier Rakesh Gupta, Director James, for taking out time from his very busy schedule and being present amongst us and give his special remarks and blessings to all of us. We are thankful to you, sir. I would also like to thank Professor Ruchika Kuba, Director, School of Health Sciences. Ma'am, you have kindly agreed to be present in this program and give your remarks informing us, the participants, about functioning of School of Health Sciences, about the programs that are being offered, and especially the program Certificate in Community Health Nursing that is specifically towards focused on tuberculosis. We are thankful to you, ma'am. Next, I would like to thank special thanks to our resource person today, Dr. Rashmi Upadhyay, Head Department of Pulmonary Medicine, JIMS. Ma'am, thank you very much for accepting our invitation and give a detailed presentation about the history of tuberculosis, its statistics, how it is prevalent in our country and the world. We have also informed about the various diagnostic measures that are now available for detection of this particular disease, its symptoms, different steps that have been taken by Government of India, specifically National Strategic Plan 2017-2025 and the Nikshay Poshan Yojana that we were not actually aware of. It was a very enlightening lecture for all of us and we have really learned a lot from your lecture. And once again, thank you very much for being present amongst us and giving such an elaborate presentation and familiarizing us with different aspects of tuberculosis. Thank you, ma'am. We are also thankful to District Tuberculosis Officer Dr. Shirish Jain. So you have been present in this meeting throughout. We are seeing that you were listening to the presentation. Thank you so much for being with us for this program. We are really thankful to you. IGNOU Regional Center Noida is really thankful to you, sir. I would also like to thank Dr. Rita Devi, School of Health Sciences. Ma'am, you have been present in this program with us. You have been listening to the resource person. We are grateful to you. My personal thanks to our Senior Regional Director, Dr. Amit Chaturvedi, sir. So for your guidance, for organizing this program and extending your kind support at all the steps. Thank you very much, sir. I also thank my senior colleague, Dr. Siran Mukherjee, ma'am, for her concluding remarks in this program. My senior colleague, Dr. M.A. Laskar, Deputy Director. Sir, I'm thankful to you also. And last but not the least, all the staff members, all the officers of Regional Center Noida, and also other participants who have joined this program. And very patiently, they were listening to our resource person. IGNOU Regional Center Noida is really very thankful to all of you. Thank you very much. Thank you, Dr. Anjana. We may request for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you to all for this last and webinar. Ita Devi ji, I'm sorry आपको मैं नहीं देख पाया, आपको invite किया, I'm sorry. And It's all right, sir.
This is my area of interest because I have worked for 8 years in tuberculosis center Oh, I before see. joining IGNU. So we are also now and then doing the awareness programs. And Madam Rashmi, she has taken very good lecture today. Very good information you have given. It's really nice hearing all of you. Thank you so much. नमस्कार। और श्रीज जैन जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आपने हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने ट्यूबरक्लोसिस के जो आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए, और डेफिनेटली वी विल बी उसमें फायदा होगा हम लोगों को और जिम्स को भी फायदा होगा। रश्मि जी, थैंक यू वेरी मच। I would like to welcome you all at GIMS at some time at your leisure.